Okay, so again, a very warm welcome to all of you. Hopefully, all of you are doing fine and are good in health, studying hard, playing hard, and hopefully, all of you have watched my previous lectures in which we discussed the concepts of compound interest. And today, we'll do lots of questions. खूब सारे questions solve करेंगे and कोशिश करेंगे कि हम चेक कर पाए कि हमारे concepts clear हुए हैं या नहीं. So let's begin with the questions. And what I expect from you that you are ready with your copy and pen and you will solve along with me. Okay, so let's start the questions. And for example, let's begin the question. And here the first question would be find the amount, very basic question. Find the amount when, let me check the values. So the values are principal is 2500, okay. When P is 2500, rate is 20% and time is 2 years. So we all know in compound interest we can use the simple formula. We have already derived this formula, so no worries, we can simply apply this. So a principal of 2500 is there. And what is the rate percent? Every time, first of all, we have to see how many times we get interest. So it is written that it is compounded annually. I missed it. Please note this down. Compounded yearly. So at the end of first year, I'll get the interest, and at the end of second year. So how many times will I get the interest? 2. So n becomes 2. And since I'm getting interest yearly, so the rate percent is 20% per annum. So this becomes 1 plus 20 by 100. And let's quickly solve this. See how we solve this. Very important. 2500. Write this down 1 upon 5. Take the LCM. This becomes 6 upon 5. This is 2500. And this becomes 2500 into 6 upon 5 into 5. This is 25. This becomes 100. This becomes 3600. So the amount is 3600. We have calculated amount is 3600. If somebody asks you what's the compound interest, you can say compound interest is 3600 minus, that is amount minus principal, which becomes 1100. Okay, cool, easy. Okay, so very basic question this was, where we just applied the formulas. And now we'll go to the second question. So here the second question is, you have to find the amount and compound interest. Same logic, just the values have been changed here. So the principal is this time 16,000. Rate is 3%, 10% per annum, and time is given 3 years, and you have to again find the amount and the compound interest, total interest earned. So again we can apply the same formula. We know that A is equal to P into 1 plus R by 100, and this is also compounded annually or yearly. This is again compounded yearly. Okay, so again we'll apply the same formula. This is 16,000. Principal I'm talking about 1. What I'll do, I'll check how many times will I earn the interest. It is compounded yearly, so at the end of first year I'll get the interest, at the end of second year, at the end of third year. Yearly I'm getting interest. Put n is equal to 3. At what rate? Yearly rate is 10% per annum. So 10 upon 100. Quickly we'll solve this. We'll cancel this out. This becomes 10. Take the LCM. This becomes 11 upon 10. Whole cube is there. So what we'll do, we'll open the bracket. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 121 into 16 into 11. Quickly solve it.
So 121 into 11, 6 is 66, 11 ones are, this becomes 6, 12, 7, this becomes 7, 14, 8, this becomes 121. 6, 9, 4, 1, 5, 7, 12, 3, 8, 11, and that was 3, 8, 11, 2. Okay, so 16,000 rupees becomes 21,296. This is the amount. You can simply calculate the compound interest also by just subtracting this from the amount from the principal. Very basic questions. Very basic question, simple formula, compounded yearly. What we do, how we do, we all know. And why are we putting the formula? Why the value of n is 3? We all know. We have already seen this in the previous classes. Okay, now comes the question 3. So let me look it for the question. Okay, now very good question. You have to find the difference between the simple interest and the compound interest. Just a minute. Yes, this is fine. Okay, so now again what we'll do is we have to find the difference between the simple interest and the compound interest at 5,000 for 2 years. Very good question. I like. Here the whole concepts are used. You have to find the difference between the write down the question. This is question number 3 today's. Find the difference between simple interest and compound interest for 2 years. For 2 years, and the values are given on 5,000 rupees. Time is already given, 2 years at 6% per annum. Okay, 6% per annum, and this is compounded annually और ईयरली. ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 5, रिमेंबर इमरान खान वाइफ गर्लफ्रेंड दोनों को उसने पैसे दिए थे. एक को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए थे, एक को सिंपल इंटरेस्ट पे दिए थे. पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट. बिकॉज व्हाई? बिकॉज द प्रिंसिपल इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. पर सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो सेम रहता है. तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा. सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं होगा. 5,000 इंटू रेट कितना है 6 इंटू 2 अपॉन 100. ये सिंपल इंटरेस्ट का आ जाएगा. 15 इंटू 6 हो गया 300 और ये हो गया 600 रुपीज. ये तो एस आई अर्न किया. एस आई का फॉर्मूला याद है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. इसका प्रूफ सब हमने पढ़ रखा है पहले से. फॉर्मूला कैसे बना था ये वाला. अब भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की बात, तो पहली चीज तो पता होनी चाहिए भाई कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा ही होगा. ज्यादा होगा. कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एस आई इफ टाइम पीरियड इज मोर देन 1 ईयर. पहले साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम होता है और सिंपल इंटरेस्ट भी सेम ही होता है, पर सेकेंड ईयर से कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ने लगता है. अच्छा देखो, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 600 रुपये आया, मतलब पहले साल 300 रुपये मिला, दूसरे साल भी 300 रुपये मिला. ठीक है, फर्स्ट ईयर इट वॉज 300 एंड सेकेंड ईयर ऑल्सो इट वॉज 300. तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो पहले साल 300 रुपये मिला होगा. ये बहुत ईजी, मैं फॉर्मूला लगा के इसे क्लियर कर सकता हूँ, पर मैं टाइम इसलिए स्पेंड कर रहा हूँ ये कंसेप्ट क्लियर रहे कि ये चीज़ ज़्यादा क्यों होती है. मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी, बट आई विल टेक 2 to 3 minutes to explain you again. तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल 300 रुपये आया होगा. अब प्रिंसिपल चेंज होता है. प्रिंसिपल क्या हो जाता है, नया प्रिंसिपल जो सेकेंड ईयर, मतलब कि P2 क्या हो जाता है A2 A1 सॉरी, P2 क्या हो जाता है A1 और A1 क्या होता है P1 प्लस I1. मतलब P2 जो है वो क्या है P1 है और I1 है. अब P2 पे इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर, इसका मतलब P1 पे इंटरेस्ट मिलेगा और I1 पे इंटरेस्ट मिलेगा. तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है I1 पे, मतलब 300 रुपए पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, वो वैल्यू एक्स्ट्रा होगी.
ठीक है, इस 300 रुपए की जो इंटरेस्ट मिला पहले साल, इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, है ना। भाई सिंपल इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल P1 ही रहा हर साल, P1 P1 P1, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि इंटरेस्ट जुड़ जाता है ना। तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, एक्स्ट्रा वैल्यू इंटरेस्ट की आ रही है, वो क्यों आ रही है? इस I1 की वजह से आ रही है। तो अगर तुम देखो कि जो ये 300 रुपए इंटरेस्ट पहले साल मिला है, इस पे सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 300 इंटू वन, एक साल का ही टाइम पीरियड है ना। पहले साल के एंड पे इंटरेस्ट मिला 300 रुपए, और अब ये प्रिंसिपल का पार्ट बन जाता है सेकेंड ईयर के लिए। रेट कितना है? 6% अपॉन 100, ये डिफरेंस होगा। ये जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है, यही डिफरेंस होता है। या बेसिक तुम वैसे भी कैलकुलेट करके देख लो, फॉर्मूला लगा लो। ये तुमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 5000 1 प्लस, ये कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, है नहीं? ये तुम फिर कैलकुलेट करोगे पूरा 350, ये हो जाएगा 53/50, है ना। तो अब मेहनत तो देखो, घोड़ा भी करता है और बैल भी करता है ना, पर दिमाग भी लगाना है मेहनत करते समय, है ना। कर लेते हो, कैलकुलेट कर लो। ये 5000 इंटू 53/50, 53/50, 25 2, 106 इंटू 53, 18, 318, 106 इंटू 5 कितना होगा? 530, है ना। 100, ये कैलकुलेशन कर लेना। 5618, ठीक। ये क्या है? अमाउंट है, और वो क्या है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। साफ से लिख देता हूँ, ये अमाउंट मिल गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 618 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 618, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 618 रुपये का डिफरेंस है। देखो यही 18 रुपये का डिफरेंस है। 18 रुपये का डिफरेंस क्यों आया था? क्योंकि पहले साल के एंड पे हमको एक इंटरेस्ट मिला था, उस इंटरेस्ट पे हमें फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों उस इंटरेस्ट पे फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? क्योंकि वो इंटरेस्ट जो था वो प्रिंसिपल का पार्ट बन गया था। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। तो अब 2 साल वाले क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। अच्छा, अभी 3 साल का क्वेश्चन बचा है, पर बेसिकली दैट डजंट कम इन बोर्ड्स, है ना। आपके आता नहीं है, पर वील डिस्कस इट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रॉबी obtained a loan of something from the syndicate bank to renovate her house if the rate of interest is 8% per annum. What amount she'll have to pay to bank after 2 years to discharge her debt? तो एक रॉबी भैया थे, नहीं रॉबी दीदी थी, इन्होंने कितना लोन लिया? 25,000 रुपीज का, ठीक। एक बैंक से लोन लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 8%, टाइम 2 years, ये पर एनम है। हाँ, अगर कुछ नहीं लिखा है तो मान लेना पर एनम है, ठीक। और इट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो कितना अमाउंट देंगी ये? कितना अमाउंट देंगी? सिंपल क्वेश्चन यार, वही लॉजिक। अमाउंट क्या होता है? P1 + R/100 N, ठीक। N मतलब कितनी बार इंटरेस्ट पड़ेगा इस रुपए पे। अभी इन्होंने लोन लेके आई है तो बैंक कितनी बार इंटरेस्ट लगाएगा। इट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो पहले साल के एंड पे लोन इंटरेस्ट लगाएगा, दूसरे साल के एंड पे इंटरेस्ट लगाएगा, तो 2 बार तो इंटरेस्ट लगेगा। तो प्रिंसिपल की जगह लिख दो 25,000, 1 प्लस आर क्या है? परसेंट पर एनम, क्योंकि साल पे इंटरेस्ट लग रहा है ना। सॉल्व करें, 2 कर दो, 25 कर दो, ये हो जाएगा 27/25, ये हो जाएगा 25,000, 1,000, 40,
27 अब 27 कर लेते हैं जल्दी से, बहुत इजी होता है। तो मैं बताऊं, 27 तो मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हो, पर 27 को क्या लिख दो, 30 - 3। ठीक, 27 3 सा सबको पता है 81 होता है, तो 810 हो गया। ठीक, 27 की वैल्यू आ गई। इसकी भी एक क्लास करूंगा, ये मल्टीप्लिकेशन जल्दी जल्दी कैसे हो जाते हैं। एक तो सबसे पहली बात कि ये ज्यादा ट्रिक विक के चक्कर में पढ़ना नहीं है, ट्रिक अपने आप आ जाएगी। जब खूब सारे मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, बेसिक जो बेसिक होता है, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 4 18, 54, ये बेसिक होता है। 729 यहीं पे वो भी यही आएगा, 729। ट्रिक की बात आती है बाद में। मेरा फेवरेट इस समय का क्रिकेटर है विराट कोहली। उसी की बात में, उसके सारे, उसकी तुम करियर देख लो तो तुम्हारी लाइफ के सारे आंसर मिल जाएंगे। या उसके बैटिंग करने का तरीका, बेसिक इतना स्ट्रांग है ना उस बंदे का, इतना स्ट्रांग है। उसको टेस्ट मैच खिला लो, बेसिक लगा देगा। वनडे खिला लो, बेसिक। बेसिक शॉट उसके पके पकाए हैं। डिफेंस करना है ऑफ साइड पे आके, डिफेंस करते समय बैट और पैड के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये टेस्ट क्रिकेट सिखाता है। उसी उसी डिफेंस को थोड़ा सा वो आगे बढ़ा देता है ऐसे। वनडे में ड्राइव होकर चौका चली जाती, उसको थोड़ा सा वो ऐसे बढ़ा देता है। 2020 में कवर्स के ऊपर छक्का चला जाता है। तो जब ये तुम्हारा बेसिक एकदम इतना तेज कैलकुलेशन कर दो, इतनी तेज, ये सब बात की बातें हैं, डोंट वरी अबाउट ऑल दिस। हाँ, तो कहाँ मैं विराट कोहली में चला गया। ये क्वेश्चन था 729 हो गया ये, ठीक है। अब 729 इंटू 40 कर देते हैं। 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 3 11, 28 29। 25,000 रुपए लिए थे, 29,160 रुपए इनको वापस कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है, कोई डाउट? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक, लेकिन उसे तुम इंटरेस्टिंग को इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि लगे यार अब क्या है, हर तरह के क्वेश्चन होगा, बोरिंग हो रही है, तब छोड़ो मैथ्स को, तब रेस्ट ले लो, अब बोरिंग हो रही है। वही क्वेश्चन बार बार हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कंसेप्ट बार बार रिवाइज हो रहा है दिमाग में, मैथ्स कैलकुलेशन स्पीड तेज हो रही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिना बोरोड 20,000 rupees from her friend Nancy at 12% per annum simple interest. She lent it to Andy at the same rate but compounded annually. Find her gain after 2 years. तो होता क्या है, एक हिना लड़की है। हीना, हीना मतलब पता है क्या होता है? मेहंदी। हीना, हीना ने क्या किया, 20,000 रुपए लिए नैन्सी से। नैन्सी ने हीना को 20,000 रुपए दिए। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12%। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12%। नैन्सी ने हीना को दिए, तो अब ये रुपए वापस करेंगे इसको। कितने टाइम बाद वापस करने को कहा है? 2 साल बाद। 2 साल के लिए नैन्सी ने पैसे दिए हीना को। हीना एकदम चतुर चालाक चंचल चहल जैसी, क्या किया इसने, इस 20,000 रुपए लेके आई और अपने दूसरे दोस्त, विक्रम इनका दोस्त था, उसको यही रुपए दे दिए 20,000 रुपए और कहा हमें 2 साल बाद लौटाना। वही रेट 12% पर एनम, पर कंपाउंडेड एनुअली। इनको इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया पैसा। अब ये बताओ, हीना को इधर से कुछ पैसा मिलेगा? वापस देंगे ना विक्रम, और हीना को, नैन्सी को भी कुछ पैसे देने हैं। नैन्सी को जो पैसे देने हैं वो सिंपल इंटरेस्ट पे देने हैं, पैसे जो मिलने हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो क्या होगा, फायदा ही होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है 2 साल पे। तो चलो फिर से देखते हैं कितना फायदा होगा इनको। देखो, एक तो सिंपल लॉजिक है कि चेक करो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना देना है। 20,000 इंटू 2 इंटू 12/100,
ठीक है, यही ना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो ये कट गया, 12 टू द 24, 24 टू द 48, ये हो गया 4800। ये इंटरेस्ट देना है इनको, इंटरेस्ट अमाउंट नहीं 20, ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना है, 2 साल में इतना इंटरेस्ट बन रहा है। इसका मतलब पहले साल कितना इंटरेस्ट दिया होगा, 2400 रुपये, और दूसरे साल भी इंटरेस्ट दिया होगा 2400, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, सो इंटरेस्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, वही पैसे इन्होंने 2 साल पे 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए थे, तो इन्हें फिर पहले साल भी तो इंटरेस्ट मिला। अब विक्रम हीना को कितना इंटरेस्ट देगा पहले साल, 2400, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। अब इस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे, ये जो इंटरेस्ट है इस पे कुछ और इंटरेस्ट मिलेगा अगले साल, वही एक्स्ट्रा होगा 2400 पे, ये एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे हीना को, प्रॉफिट सीधे कैलकुलेट कर दिया। क्यों ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, क्योंकि भाई अगर सिंपल इंटरेस्ट ही होता तो उसे 4800 ब्याज मिल जाता, 2400 पहले साल का, 2400 दूसरे साल का। ठीक, पर चूंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो पहले साल तो 2400 रुपये इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल भी 2400 मिलेगा, प्लस कुछ और इंटरेस्ट मिलेगा। ये प्लस इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, ये जो पहले साल का इंटरेस्ट था उस पे जो उसने इंटरेस्ट अर्न किया दूसरे साल, ये होगा दूसरे साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, और वो होगा उसका प्रॉफिट। देख लो, फॉर्मूला लगा के देख लो, अमाउंट इज इक्वल टू 20,000 1 प्लस, ठीक, ये मैं रफ में कैलकुलेट करता हूँ, ये कैलकुलेशन आप लोग भी कर लीजिएगा। ये तो आ गया क्या, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे इतने पैसे विक्रम ने दिए, कितने दिए, 25,088 रुपये, और हीना को वापस कितने करने थे पैसे, ये हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, तो ये आ जाएगा 20,000 प्लस 4800, 24,800। ठीक, ठीक है, क्लियर। अब ये डिफरेंस तुम कैलकुलेट कर लेना, वही प्रॉफिट होगा। ठीक, ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 2 साल वाले जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, एकदम पक्के कर लो, ये एक ना एक क्वेश्चन तो फंसना ही है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन, कितने हो गए, 7-8 क्वेश्चन हो गए ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन, थोड़े से कठिन। चलो एक क्वेश्चन है, 3 years ago रोहन परचेज्ड अ बफेलो फ्रॉम सोहन एट रुपीज 11,000, 11,000 रुपए की बफेलो खरीदी रोहन ने, सोहन से, रोहन ने सोहन से, तो रोहन ने सोहन से बफेलो खरीदी 11,000 रुपए की 3 साल पहले। व्हाट, और उधार पे खरीदी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है व्हाट पेमेंट विल डिस्चार्ज हिज डेप्ट नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो भाई रोहन सोहन से बफेलो लेके आते हैं, सोहन देता है बफेलो, कितने रुपए की है, 11,000 रुपए की, भैंस लिखूं भैंस,
भैंस भैंस तो भैंस खरीद के लाए रोहन साहब, और उस कहा कि 11,000 रुपए की है, हम 3 साल बाद देंगे। तो सुवन ने कहा 3 साल बाद दोगे तो इस पे हम ब्याज चार्ज करेंगे। कितना ब्याज चार्ज करेंगे? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। ठीक है, एंड इट इज कंपाउंडेड एनुअली, और टाइम हो गया 3 साल का। तो जो 11,000 रुपए थे 3 साल पहले, वो आज कितने हो जाएंगे? सिंपल फॉर्मूला। कहानी बहुत होती है क्वेश्चन में, बेसिक देखो क्या हमें चाहिए। अभी फिजिक्स जब करोगे ना, दुनिया जहान की चीजें मिल जाएंगी फिजिक्स में। ये है, हीट है, मोमेंटम है, ये है, वो है। जो जो चीजें जरूरत की है उसे क्वेश्चन से छांटो, क्वेश्चन भूल जाओ। आखिरी लाइन याद रखो, फाइंड क्या करना है, फाइंड कर लोगे ना। इजी है ये तो। मैं जो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं वो है, ओके, हाँ थोड़ा चेंज किया जाए ना क्वेश्चन को। कंपाउंडेड हाफ ईयरली या एनुअली देखते हैं, सेमी एनुअली देखते हैं, या हाफ ईयरली। चलो भाई, तो क्वेश्चन है कि फाइंड द अमाउंट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 for 2 years at 10% per annum, compounded semi-annually, semi-annually या हाफ ईयरली भी कहते हैं इसको। सेमी एनुअली या हाफ ईयरली भी कहते हैं इसको। ठीक, तो अब देखो, अब फिर से बेसिक प्रिंस अमाउंट, क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने? P 1 + R/100 to the raised to the power of n। अब ये बताओ, प्रिंसिपल तो हमें पता है कितना है, 16,000। ठीक, 1 + रेट कितना है? अभी रुको, अब देखो, सेमी एनुअली पर एनम का रेट दिया है, तो सेमी एनुअल का रेट हो जाएगा 5। और एन क्या होता है, कितनी बार ब्याज मिलेगा। इट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब 6-6 महीने पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पहला इंटरेस्ट 6 महीने पे, दूसरा 12 पे, तीसरा 18 पे, चौथा 24 पे। अब 24 मतलब 2 साल पे। 2 साल के भीतर हमें 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो हो जाएगा 4। ठीक, ये कैंसिल 20, ये हो जाएगा 21/20, 21/20, 21/20, 21/20, 16,000 इंटू 21/20। 2 4 8 16, पहले तो जीरो हटा दो, 3 0। ठीक, ठीक। फॉर 21 इंटू 21 मुझे याद है 441 होता है, तो 441 इंटू 441 कर दो, ये फिर से 441, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये 1764 हो जाएगा, और फिर से 1764 हो जाएगा। 14 14 9 1/10। ठीक, पॉइंट लगा दो, 10 से डिवाइड कर रहे हो तो एक्चुअल अमाउंट कितना पे करना है इनको, 19,448 रुपीज 10 पैसा। अब कभी कभी पूछते हैं राउंड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी, तो नियरेस्ट रुपी में तो यही आंसर हो जाएगा, है ना, 19,448। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो गया, क्वार्टरली भी होता है, और बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हो गए। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में बच जाता है एक 3 इयर्स वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत कम आते हैं,
आई एम टॉकिंग अबाउट ए स्कूल लेवल, ठीक है, कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन, तो इसकी एक छोटी सी क्लास में करूँगा और इसी में क्वेश्चंस कर लूँगा, एकदम बेसिक है ये, वेरी बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। सो प्लीज प्रैक्टिस मोर एंड मोर, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, जस्ट पोस्ट इट in the comment, please post in the comments, and that will be resolved within 48. Our team is continuously working on to make study simple for you and very easy for you, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ाया है या कुछ भी है, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है आपके यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख सकते हो, और इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।